So good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So I have uploaded your marks on Oris. I hope you have seen it. Let's start today's class. Where we will be discussing about forces which are required in forging or maybe forming process. So we will start with forging process. So in the last class, we discussed the von Mises and Tresca's criteria to initiate slip, or to initiate plastic deformation. So as per Tresca's criteria, we discussed that the shear yield stress, which is represented by K, must be equal to tensile yield stress divided by 2. When this condition will get satisfied, it means that plastic deformation will happen. Okay. In von Mises criteria, von Mises criteria is a criteria related to strain energy, and strain energy in 6 dimension is given by this formula: U is equal to 1 by 6g sigma 1 minus sigma 2 whole square plus sigma 2 minus sigma 3 whole square plus सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला फॉर व्हेन ए मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू stresses in 3 dimensions, or it has 3 principal stresses, that is sigma 1 sigma 2 and sigma 3, then the total strain energy जो यहाँ पे मैंने u से define की है is given by this formula. Okay. When material is, or according to von Mises criteria, when this value reaches to a particular value, that a constant, let's say C, then plastic deformation happens. Okay. और ये C क्या है? Let's say your material is in tension, है ना, in one dimensional tension. So it is subjected to only tensile stress, that is sigma x, and sigma x is also equal to sigma y, that is yield stress, है ना. इसको आपने yield stress तक टेंशन दी है क्योंकि इस सिग्मा y के बाद ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा. So in that case, sigma 2 and sigma 3 become 0, and there is only one principal stress, that is sigma 1, and which is also equal to sigma y. Okay, there is only one stress. Material is in unidirectional tension. So in that case, putting these values into equation 1, then we can write that 1 by 6g into सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 0 हो गया है ना, तो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 स्क्वायर फिर से हो जाएगा, बाकी सब 0 हो गया. So it must be equal to C. So we can write sigma 1 square or 2 sigma 1 square is equal to 6 C into G, 6 Cg, which is, say, let's any particular constant A.
है ना. 6 C is a constant, G is modulus of rigidity which is again a constant. तो ये पूरा multiplication is a constant. Let's say it is equal to A. So yielding will occur when 2 sigma 1 square, which is also equal to 2 sigma y square, is a constant which is you can say A. Now let's consider that the material is subjected to pure tension, है ना. इस कंडीशन में हमने कंसीडर किया था कि ये प्योर टेंसाइल कंडीशन में है, यूनिडायरेक्शनल. लेट्स से मटेरियल इज इन प्योर टेंशन, सॉरी प्योर टॉर्शन, नॉट टेंशन. टॉर्शन का मतलब है कि सिर्फ shear स्ट्रेसेस लगेंगे, and let's say the value of this shear stress is tau. So as per Mohr circle, है ना, Mohr circle, Mohr actually devised a circle by use of which we can determine the value of principal stresses inside a system. तो इस मोहर सर्किल में क्या होता है, वाई एक्सिस जो होती है वो शियर स्ट्रेस की होती है, ओके, और जो एक्स एक्सिस होती है वो होती है टेंसाइल स्ट्रेस की, दैट इज सिग्मा. अभी देखिए ये जो मटेरियल है इस पर सिर्फ शियर स्ट्रेस लगा है ना, इन ऑल दी डायरेक्शंस. तो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस इस यहाँ पे टाउ हो गया और नेगेटिव शियर स्ट्रेस यहाँ पे. तो अगर हम ये एक सर्कल इसी रेडियस को लेके एक सर्कल खींचते, तो इस सर्कल की सहायता से हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो प्रिंसिपल स्ट्रेस देखिए टाउ मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो टाउ यहाँ पे है, तो ये प्लस टाउ, ये माइनस टाउ, ठीक. इसी तरह यहाँ पे दो प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं, एक हो जाएगा प्लस सिग्मा, है ना, और दूसरा हो जाएगा माइनस सिग्मा, और दोनों की वैल्यू जो है वो टाउ के ही बराबर है, दैट इज इक्विवेलेंट टू शियर, just the direction is changed. So Mohr circle is a way by which you can design or you can determine principal stresses. इसका मतलब यह है कि अगर एक मटेरियल अंडर प्योर टॉर्शन है तो उसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो आएगा वो टाउ के बराबर होगा. इसके साथ ही साथ उसके अंदर टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस भी आएंगे, है ना, और जिनकी वैल्यू सिग्मा विच इज इक्विवेलेंट टू टाउ के बराबर ही होगी, है ना. ये एक मैंने बहुत जनरल डिस्क्रिप्शन दिया है मोहर सर्किल का. मोहर सर्किल मे बी वेरी कॉम्प्लेक्स मेनी ए टाइम्स, है ना, उसमें बहुत सारे प्लेन होते हैं, बट फॉर दिस केस वी कैन ड्रॉ मोहर सर्किल लाइक दिस, ओके. सिग्मा इज द टेंसाइल स्ट्रेस एंड दिस इज शियर स्ट्रेस, ओके. तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब है कि ये टेंसाइल है, नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब है कि ये कंप्रेसिव. तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम जो है वो मैक्सिमम सिग्मा के अमाउंट में टेंसाइल स्ट्रेस इसके अंदर हो सकता है और कंप्रेसिव स्ट्रेस भी हो सकता है इफ द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू प्योर टॉर्शन. मतलब कोई एक प्लेन ऐसा हो सकता है ना, जनरली वो प्लेन 45 डिग्री पे होता है, बट इट डिपेंड्स. सो लेट्स से कि हमें सिर्फ यील्डिंग करनी है. यील्ड करने के लिए टाउ मस्ट बी इक्वल टू के, है ना, के इज शियर यील्ड स्ट्रेस. तो हम फिर से इस इक्वेशन में अगर हम चले जाए यूजिंग दिस इक्वेशन, सो वी कैन राइट हियर, लेट्स ड्रॉ ए लाइन. तो यहाँ पे देखिए सिग्मा 1 जो है दो फर्स्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा के के बराबर है ना, और सिग्मा
3 जो है वो -k के बराबर है, दैट इज ऑन अदर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दिस वन, है ना, एंड देयर इज नो इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो इसको 0 कर देते हैं. This is obtained using this Mohr circle. Am I clear on this part? So when a material is subjected to pure torsion, it will be subjected to two principal stresses, k and minus k. It is a plane case, you know. We are not considering a three-dimensional space. So putting this value into this equation, we can get A जो है वो कितना हो जाएगा, that is A means 6 Cg, है ना, 6G into C will be equivalent to K minus 0 whole square plus 0 plus K का whole square plus minus K whole square. So this will become K square plus K square plus 4K square, that is 6K square. So the value of A here is 6K square. The value of, when the material was under tension, the value of A was 2 sigma y square. So we can just compare both two cases because the value of constant will remain same irrespective of the loading condition. So 2 6K square. So here we can get that K is equal to sigma y by root 3. No? So as per von Mises, the shearing will occur when the value of shear yield stress is equivalent to tensile yield stress divided by root 3. Okay, and this is more common way, more standard way to define the shearing or plastic deformation. Not shearing, but plastic deformation. So is there any question on this part? No. So let's move up and let's analyze the forging process. So if you remember, we have defined a forging process by a process in which something is pressed between two dies, है ना, वो हॉट कंडीशन में भी हो सकता है, और तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर फोर्स लगाया है, and then due to this pressure force, this specimen or workpiece actually changes its shape. Generally it gets compressed, तो ये इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में फैलता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोल्जिंग. ठीक, फोल्जिंग हॉट कंडीशन में भी हो सकती है, कोल्ड कंडीशन में भी हो सकती है. So it depending upon whether it is being done in hot condition or cold condition or warm condition, there may be different cases, and these cases are defined like when it is done at cold temperature, then the friction which occurs between this die and this workpiece is of sliding nature. स्लाइडिंग का क्या मतलब है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, है ना. तो कोई भी आप देखिए, अगर आप कोई भी सब्सटेंस के ऊपर फोर्स लगाइए यूजिंग सम काइंड ऑफ, अगर तो दोनों के बीच थोड़ा तो स्लिप कंडीशन आता है ना, थोड़ा सा स्लाइड आता है. सो दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. और अगर आपने इसको हॉट कंडीशन में किया है ना, लेट्स से द वर्क पीस इज
at a temperature more than its recrystallization temperature. Then the condition of sticking starts. स्टिकिंग में क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस हॉट टेम्परेचर ये डाई के साथ जो वर्क पीस है वो कनेक्ट हो जाता है ऑलमोस्ट, है ना, स्टिक कर जाता है, और इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन होती है उसको बोलते हैं स्टिकिंग फ्रिक्शन। ठीक। और थर्ड कंडीशन ऐसा होता है जो वार्म वर्किंग के केस में आता है, जो नाइदर ऑन कोल्ड वर्किंग नॉट और हॉट वर्किंग, तो वो कंडीशन होती है मिक्स्ड कंडीशन, जिसमें थोड़ा दूर तक स्लाइडिंग होता है और थोड़ा दूर तक स्टिकिंग होता है ना, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड कंडीशन। सो वी विल एनालाइज ईच ऑफ देम सेपरेटली and we'll try to determine how much pressure is required to deform it, or how much total load is required to deform a workpiece. So in the first case, we will take the condition of sliding friction, and इसके साथ ही हम लोग जो वर्क पीस ले रहे हैं इट्स ए स्लैब। ठीक, इट इज नॉट ए डिस्क, इट्स ए स्लैब, it's a rectangular slab. Okay, so before we start, there are some assumptions which you must keep in your mind. Assumption is that when we apply this force, you know, then this forging force, let's say it is represented by F, then this forging force F, it attains its maximum value at the end of the operation. Okay, जब भी हम लोग फोर्स लगाते हैं, ऑपरेशन जब शुरू होता है और जब एंड होता है, तो ये जो फोर्सिंग फोर्स है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू वो ऑपरेशन के एंड में ही होती है ना, अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू at the end of operation. That is one assumption I am keeping. Another assumption I am keeping is that the coefficient of friction, जिसको mu से represent करते हैं, between the workpiece and the dies, it is constant. Okay, so coefficient of friction mu is constant. Actually ऐसा होता नहीं है, it varies because of irregularities, because of improper flow of the material between two dies, but just we are keeping an assumption that mu is constant. तीसरा ये कि the thickness of workpiece is small, thickness of workpiece is small compared to its other dimensions. ठीक है, ये जो थिकनेस है दिस इज स्मॉल, और चौथा है कि ये जो लेंथ है इसकी, लेंथ मीन्स इन दिस डायरेक्शन, है ना, ये जो आप देख रहे हैं वो पीछे की डायरेक्शन में उसकी जो लेंथ है इज much more than width, and the problem is of plane strain type. Okay, much more मतलब बहुत लंबी है, than width, and problem is of plane strain type.
And the last one is that the workpiece is in plastic state, मतलब ऑलरेडी इसको प्लास्टिक स्टेट में ला दिया गया है सिग्मा वाई, और फिर हम लोग यहाँ से डिफॉर्मेशन शुरू कर रहे हैं, is in plastic state during the process. Now let's consider this case, the sliding friction case, and the material is slab, okay, say rectangular workpiece. So let me draw. Let's say this is your rectangular slab. Over which certain amount of pressure has been applied through die. जनरली एक हाइड्रोलिक सिलेंडर यूज करते हैं जिसके थ्रू प्रेशर अप्लाई किया जाता है आपके वर्क पीस पे, ओके। The workpiece has the thickness of H. लेट्स से इसको प्रेशर को स्मॉल p से मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है, एंड लेट्स ऑल्सो से दैट दिस लेंथ और विड्थ इज एक्चुअली 2L, ठीक। तो सेंटर से L इधर है और L इधर है, दिस इज L एंड दिस इज L. So this is the center line x. So this is positive x and this is negative x. Okay, so for our purpose is to determine that how much pressure is required to deform this slab, है ना, प्लास्टिकली डिफॉर्म करने के लिए टोटल कितना प्रेशर का जरूरत है। तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट्स कंसीडर ए वेरी स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल थिक पार्ट ऑफ स्लैब, है ना, एक छोटा सा ये पार्ट जो कि सेंटर से इस सरफेस की दूरी है x, है ना। और अगर मैं इसी स्मॉल पार्ट को अलग से दिखाऊं यहाँ पे, तो लेट मी ड्रॉ दिस स्मॉल पार्ट, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। दिस इज द पार्ट वी आर कंसिडरिंग। सो व्हेन वी आर अप्लाइंग द फोर्स, देखिए ये जो होल मटेरियल है वो कंप्रेस होगा, मतलब इस डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, करेक्ट। तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो स्मॉल इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल थिकनेस पार्ट है स्लैब का, दिस इज अंडर ए टेंसाइल फोर्स सिग्मा एक्स ऑन दिस पार्ट, और अगर इसकी थिकनेस dx है, सॉरी विड्थ इसकी dx है, तो इस पार्ट पे जो स्ट्रेस होगा वो होगा सिग्मा एक्स माइनस डी सिग्मा एक्स, ओके। ऑल्सो वी आर कंसिडरिंग द केस ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसका मतलब है कि देर इज ए स्लाइड बिटवीन डाई एंड वर्कपीस, तो इसका मतलब है कि देयर विल बी some kind of shear force which is working, correct, and it may be in any direction, but we are just considering any random direction tau here, ठीक। we are considering this direction just because the material is elongating into this direction, है ना। तो अगर मटेरियल इस डायरेक्शन में एलोंगेट कर रहा है
तो इसका मतलब है कि जो shear फोर्स इसके ऊपर काम करेगा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। And this is the external load P which is being applied. External, sorry, P is the pressure, okay, not force, P is the pressure. So now considering all the forces, considering force equilibrium, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स इंटू एच इंटू इसकी जो लेंथ है वो भी लिख सकते हैं ना, फोर्स का इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। तो अगर इस फोर्स पे अगर आप देख रहे हैं तो ये सिग्मा एक्स है और ये जो हाइट है इसकी ये एच है और जो लेंथ है वो बहुत पीछे तक है ना। तो हम लोग इस डायरेक्शन में जो इसकी डायमेंशन है उसको यूनिटी मान लेते हैं, ओके। तो उसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करते। तो सिग्मा एक्स इंटू एच बाई इट सेल्फ इज रिप्रेजेंटिंग ए फोर्स। तो सिग्मा एक्स इंटू एच इंटू 1 मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस इसको अवॉइड कर रहा हूँ। सो दिस माइनस सिग्मा एक्स माइनस डी सिग्मा एक्स इंटू एच माइनस 2 into shear stress 2 tau dx equals to 0. Are you getting this equation or not? Is there any problem? All of you are getting this one? आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ तो बोलो। सर h इज द हाइट ना? करेक्ट, ये h हाइट है। देखिए सिग्मा क्या है, स्ट्रेस है ना सिग्मा, तो सिग्मा स्ट्रेस इंटू ए जो होता है वो हो जाता है फोर्स, करेक्ट। यस सर। सिग्मा इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और mm स्क्वायर, है ना, इंटू अगर आप ए कर देंगे विच इज मीटर स्क्वायर तो हम लोग को फोर्स मिल जाएगा एफ न्यूटन। मैं बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो फोर्स इक्विलिब्रियम है, सिग्मा एक्स इज द स्ट्रेस, एच जो हाइट है और इसकी लेंथ जो है जो पीछे की डायरेक्शन में है ना, उसको क्योंकि वो बहुत ही लंबी है, वो सब में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे भी इंटू एक और जो डायमेंशन है जो मैं अवॉइड कर रहा हूँ लिखना, एल एल मान ली, एल नहीं सॉरी एल तो हम लोग ऑलरेडी यूज़ किया, डब्ल्यू मान लीजिए, है ना। तो यहाँ भी डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ भी डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ भी डब्ल्यू हो जाएगा, तो डब्ल्यू डब्ल्यू सब जीरो हो जाएगा, करेक्ट। यस सर। इज इट ऑल राइट? एनीबडी एल्स हैज एनी प्रॉब्लम? आदित्य आ रहा है समझ में? आदित्य आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इज इट ऑल राइट? Yes, sir. Okay. So, writing further, we can write, क्या लिख सकते हैं, d sigma x by dx is equal to 2 tau by h, है ना। सिग्मा एक्स इंटू एच कैंसिल आउट हो गया, तो d sigma x by dx is equal to 2 tau by h. Let's say it is equation 1. Again, the friction force is very small, है ना। हालांकि स्लाइडिंग होती है लेकिन वो स्लाइडिंग इतनी कम होती है कि फ्रिक्शन फोर्स इज वेरी स्मॉल। सो इन दैट केस the principal stresses in the element can be taken as sigma x is equal to sigma 1, है ना। प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा x के बराबर ली जा सकती है, और सिमिलरली अनदर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 की वैल्यू वो
माइनस पी के बराबर ली जा सकती है। Isn't it? नहीं आ रहा है समझ में? देखिए ये स्लैब है, यहाँ पे सिग्मा एक्स आ रहा है, यहाँ पे सिग्मा एक्स माइनस डी सिग्मा एक्स आ रहा है, और अगर ये फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत स्मॉल है और ये डी एक्स भी बहुत छोटा है, तो एक्चुअली सिग्मा एक्स माइनस डी सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, करेक्ट? तो सिग्मा एक्स जो है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस के बराबर ही हो जाएगा। एक प्रिंसिपल स्ट्रेस तो इस डायरेक्शन में हो गया, और दूसरा जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव लोड है, करेक्ट? जो कंप्रेसिव लोड या कंप्रेसिव प्रेशर हम लोग दे रहे हैं माइनस पी, सॉरी पी, बिकॉज इट इज कंप्रेसिव, तो जो अनदर प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो जो दूसरी डायरेक्शन में है, उस सिग्मा 3 की डायरेक्शन में है, वो जो उसको हम लोग माइनस पी के बराबर ले रहे हैं बिकॉज इट इज कंप्रेसिव। आई होप यू रिमेंबर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, है ना? प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है कि किसी भी मटेरियल में जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस 0 होता है, वहां पे जो स्ट्रेस काम करता है उसको प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं, है ना? तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये टाउ जो है वो बहुत ही छोटा है, मतलब शियर स्ट्रेस जो है, शियर स्ट्रेस फ्रिक्शन की वजह से ही आ रहा है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो टाउ की वैल्यू आ रही है, वो ये जो टाउ यहाँ पे काम कर रहा है शियर स्ट्रेस, वो फ्रिक्शन की वजह से, बट इफ फ्रिक्शन इज वेरी स्मॉल then we can consider that there is only compressive load, and when there is only compressive load it means that tau is very small, almost going to 0, so the another principal stress will be equivalent to minus p, माइनस क्योंकि ये कंप्रेसिव है, ओके? सो since it is a case of plane strain, it means that the third principal stress can be determined by this formula, which is epsilon 2 is equal to 1 by E sigma 2 minus Poisson's ratio nu sigma 1 plus sigma 3। अभी आप मुझसे पूछेंगे ये इक्वेशन कैसे आया, तो मैं आपको बोलूँगा कि ये इक्वेशन मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज कोर्स से आया, है ना? सो व्हेन मैकेनिक्स, अगर आपको ये इक्वेशन के तह तक जाना है तो आप पढ़ सकते हैं मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज में जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का चैप्टर होगा, है ना? तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल स्ट्रेन जो होते हैं एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 ना, इनको इन फॉर्मूले से, इफ यू नो there are three principal stresses sigma 1, sigma 2 and sigma 3, then you can determine these principal strains which are associated with these principal stresses. So epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 को आप इस तरह के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना? epsilon is actually equal to 1 by sigma, sorry 1 by E sigma 1 minus nu, and the difference, sorry addition of both two, you know, sigma 2 plus sigma 3, ना? ये एक जनरल सा फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन आपको मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज कोर्स में मिल जाएगा। एनीवेज हमारा काम सिर्फ इतना है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेन हम लोग एप्सिलॉन 2 कैन बी डिटरमिन्ड or principal stress sigma 2 can be determined using this equation if we know epsilon. Now what is epsilon 2? Epsilon 2 is principal strain in the direction of its width, ठीक है? सिग्मा 1 क्या है? इज ए प्रिंसिपल स्ट्रेस जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब है कि ये कितना वर्क पीस आपका कितना एलोंगेट हो रहा है, दैट इज सिग्मा 1,
और इससे एसोसिएटेड जो स्ट्रेन होगा, जो है ना, दैट विल बी एप्सिलॉन 1। सिमिलरली यहाँ पे जितना कंप्रेशन हो रहा है इट इज सिग्मा 3, है ना, तो ये पार्ट जितना छोटा हो रहा है दैट इज सिग्मा 3, और इससे एसोसिएटेड जो स्ट्रेन है दैट इज एप्सिलॉन 3। और ये जो पीछे वाली जो डायरेक्शन है इस स्लैब की, इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन हो रहा है दिस इज एसोसिएटेड विद सिग्मा 2 एंड एप्सिलॉन 2। ठीक, अब ये एप्सिलॉन 2 बिकॉज इट इज वेरी लॉन्ग इन दिस analysis we are considering that it is very long, so epsilon 2 approaches to 0, almost 0. There is no strain in this direction. Okay, so epsilon 2 approaches to 0, so that is how we can determine sigma 2, which is nothing but sigma 2 is equal to nu sigma 1 plus sigma 3। ठीक, न्यू क्या है, पॉइजन्स रेशियो क्या है, पॉइजन्स रेशियो की जो वैल्यू है वो जनरली 0.5 से 0.2 के बीच वेरी करती है ना। पॉइजन्स रेशियो न्यू की जो वैल्यू है it varies between 0.5 to 0.2. For most of the material it is equal to 0.5. So here if we are considering iron, then the principal stress is sigma 1 plus sigma 3 by 2, है ना। 0.5 अगर हम लोग ले लेते हैं पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू। So now we know the value of sigma 2. So now again let us use the von Mises criteria here. So as per von Mises criteria, sigma 1 minus sigma 2 का whole square plus sigma 2 minus sigma 3 का whole square plus sigma 3 minus sigma 1 का whole square must be equal to 6k square, है ना। अभी हम लोगों ने जो वॉन माइसेस क्राइटेरिया में डिस्कस किया कि ये वैल्यू जो है इतनी होनी चाहिए तो ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा एज पर वॉन माइसेस क्राइटेरिया। तो सिग्मा 1 की वैल्यू हमें पता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, सिग्मा 2 की वैल्यू भी हम लोग को पता है दैट इज 1/2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, इसका होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2, ये हो गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 माइनस सिग्मा 3 जो है वो उसकी वैल्यू थी माइनस पी, तो माइनस माइनस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस पी का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 की वैल्यू है माइनस पी माइनस सिग्मा 1 की वैल्यू है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। दिस मस्ट बी इक्वल टू 6k स्क्वायर वेयर k इज शियर यील्ड स्ट्रेस। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बताइए जरा कितना आ रहा है। एनीवन, just try to solve all this thing. Okay, you do that. I'm just writing that when you will solve this you will find that, इसको करके देखिएगा आप, है ना, that P plus sigma x is equal to 2k,
कुछ ऐसा आना चाहिए. No, no, it's just take this as a assignment to solve this equation. So let's say this is the equation 2, है ना? So we have equation 1, keep it ready. We have equation 2. Okay, let's just note down on this part on this page that we have equation 1, which was जय बाबा. Ma'am, kindly enjoy the meeting. The meeting has been closed. The meeting- Everybody, Brown Mundi, sing with me. Brown Mundi, Brown Mundi, Brown Mundi.